In last lecture, we have discussed regarding the Brownian movement. Okay, and in the today's lecture, we are going to discuss the next property of a collider, and that is charge. Charge on particles or collider particles. Collider particles. Charge on collider particles. Okay, so the collider particles carry charge. Okay, the collider particles carry the charge, and the charge on all particles they carry the same charge. They carry the same charge. So all the particles which are present in the colloidal solution, they carry a similar or identical charge, whatever it may be. Okay, similar charge, either whatever it may be, either positive or negative. So they may carry positive charge on all particles, or they may carry negative charge on all the particles present in the colloidal solution, present in the colloid. Okay, and the charge is due to, okay, why they get charges, okay, and where the charge came from. The charge is due to the absorption of ion, whatever it may be, either it is positive charge or a negative charge. Okay, either positive or a negative ion, absorption of positive or negative ion take place on the colloidal particle, on the surface of colloidal particle, and that's why they carry the similar kind of charge. Now due to similar charge, what happened? Due to same charge, there is a repulsion. There is a repulsion between the colloidal particles. All having similar kind of charge, and we know that whenever similar charges come closer to each other, they get repelled to each other. They get repelled to one another, and that's why due to same charge, there is a repulsion between the particle, and this repulsion is responsible, which is responsible for stability. तो दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है सर, एक चीज बता रहे, वही एक सब्सटेंस आप बोलते हो कि दो सॉल्यूशन बनाता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है, वही सब्सटेंस को आप कोई कोलाइडल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से या फिर कोलाइड के प्रिपरेशन से कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों है? ओके, उसी सिचुएशन में, उस एग्रीगेट सिचुएशन में वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल क्यों रहते हैं? ओके, क्यों रहते हैं? क्योंकि उससे ज्यादा एक्युमुलेशन क्यों नहीं होता है, एग्रीगेट फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, एग्रीगेट फॉर्म होकर प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनता है? तो प्रेसिपिटेट नहीं बनने का रीजन क्या है? ओके, तो नहीं बनने का रीजन, ये रीजन इधर है कि कोलाइडल सॉल्यूशन छोटे-छोटे पार्टिकल एक पार्टिकल साइज के रेंज में पार्टिकल बन के उधर ही वो सिचुएशन क्यों आती है, उससे आगे जाके वो प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में सेपरेट क्यों नहीं होता है? तो उसका रीजन इधर है कि उस पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, ओके, और जो चार्ज होता है वो सिमिलर काइंड का होता है, आइदर पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। अभी सेम चार्ज की वजह से क्या होता है? रिपल्शन हो जाता है, पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होता है, और उसकी वजह से वो ज्यादा क्लोज आ नहीं सकते, एग्रीगेट फॉर्म करके एक सॉलिड मास के फॉर्म में बाहर नहीं आ सकते, प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता है, ओके, और ये रिपल्सिव फोर्स
क्या है, उसका रीजन है जिसकी वजह से इस कोलाइडल स्टेट में वो सॉल्यूशन स्टेबल है या फिर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस स्टेबल हो जाते हैं, वो पार्टिकल स्टेबलाइज हो जाते हैं। ओके, तो चार्ज कैसे आता है, तो चार्ज के बारे में बताया, चार्ज इज ड्यू टू एडसॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ओके, एडसॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन from a solution. Okay, so already we have discussed that to for the stability purpose there must be a minimum quantity of electrolyte is required in the colloidal solution. And why is it required? This is the electrolyte is required for this. Okay, and these ions, positive or negative ions, are adsorbed by the particles of colloidal solution and they form a stable colloid. Now charge किधर किधर से आता है, ओके, तो चार्ज किधर से आता है, तो चार्ज आने के रीजन जो है, तो देखो एक इलेक्ट्रो डिस्पर्शन में ये कहता है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की। ओके, so while doing a colloidal solution, while preparing a colloid, okay, by this electrodispersion there is a chance of capture of electron, there is a chance of capture of electron by colloidal particles. So during the electrodispersion, when we pass a high electric voltage between the two electrodes, okay, when we do that sparking, okay, there is a chance of lose of electron, and that lose of electron may what absorbed by the what or captured by the colloidal particles. Okay, the second क्या है, तो second कौन सा है कि प्रिफरेंशियल एडसॉर्प्शन हो सकता है, प्रिफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस। कोलाइडल पार्टिकल्स प्रिफरेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अपनी क्वांटिटी बता दी है कि स्टेबिलिटी के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव आयन आ गया, नेगेटिव आयन आ गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन। ओके, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में है, उसमें से प्रेफरेंस देके के एडसॉर्प्शन होता है। किसका एडसॉर्प्शन होता है, कोई तो एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन का, ओके, और वो कोलाइडल पार्टिकल डिसाइड करते हैं कि कौन से आयन को एडसॉर्ब करने का है। तो नेचर, ओके, कोलाइडल पार्टिकल के नेचर के ऊपर एक प्रेफरेंस है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर डिस्पर्शन मीडियम की नेचर के ऊपर, या फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की नेचर प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि कोलाइडल पार्टिकल कौन सा आयन एडसॉर्ब करने वाले हैं, वो either पॉजिटिव करेंगे या फिर नेगेटिव करेंगे। और थर्ड जो है, ओके, थर्ड जो है वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल double layer. So by these means, okay, by these, because of these three reasons or due to these three paths, okay, these colloidal particles may carries a charge, may carries a charge. कैसे कैसे कैरी कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोडिस्पर्शन, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेफरेंशियली जो आयन अवेलेबल है उसको एडसॉर्ब कर लेंगे अपने ऊपर, या फिर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बना देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल के ऊपर कोलोइडल सॉल्यूशन में एक चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, वो डिपेंड्स है। वो क्या है, डिपेंड है कि कोलोइडल पार्टिकल कौन सा है वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये उसके वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होता है, पार्टिकल के बीच में रिपल्शन होने की वजह से एग्रीगेशन नहीं होता है, एग्रीगेशन नहीं होने से प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होने से आपके कोलोइडल सॉल्यूशन का, आपके कोलोइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, सो बाय these three ways, these are the different three ways by means of which the colloidal solution may carry or colloidal particles may carry charge. Out of these we are going to discuss one, that is preferential adsorption. Okay, the first one, preferential adsorption. Preferential adsorption. So what happened during the preferential adsorption? Okay, the colloidal particle, the sole particle preferentially adsorb positive or negative ion from the dispersion medium. Okay, the colloidal particles may adsorb positive or negative ion from the dispersion medium, and because of which, because of this preferential adsorption, कोई तो एक जो अवेलेबल है उसको क्या करते हैं वो लोग, सॉरी वो पार्टिकल क्या करते हैं, एडसॉर्ब कर लेते हैं। ओके, और उससे क्या हो जाता है, उस पार्टिकल के ऊपर वो चार्ज आ जाता है। ओके, तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है। ओके, सिल्वर नाइट्रेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन आप जब भी मिक्स कर देते हो, ओके, हाईली डाइल्यूटेड पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ओके, और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन जो हाईली डाइल्यूटेड है, वो जब हम मिक्स करेंगे तो पोटेशियम सॉरी सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर सिल्वर आयोडाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, और वो कोलोइडल पार्टिकल जो बनने वाले हैं, तो एग्जांपल जो कोलोइडल पार्टिकल्स बनने वाले हैं सिल्वर आयोडाइड के, ये क्या करते हैं, प्रेफरेंस से नेगेटिव आयन को एडसॉर्ब कर लेते हैं, नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, एडसॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो वेरी डाइल्यूट AgNO3 and highly diluted, मतलब इससे भी ज्यादा है, highly diluted Ki जब आप मिक्स करोगे तो सिल्वर आयोडाइड के कोलोइडल पार्टिकल प्रिपेयर होंगे। ओके, उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे जो कोलोइड से साइज के, और ये सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल क्या करते हैं, अपने सरफेस के ऊपर I- को एडसॉर्ब कर लेते हैं, I- को एडसॉर्ब कर लेते हैं। जब भी आप Ki सॉल्यूशन, ओके, AgNO3 में ऐड करोगे, Ki सॉल्यूशन को AgNO3 में ऐड कर दोगे, तो वापस एक सिल्वर आयोडाइड कोलोइडल पार्टिकल्स बनेगा, और वो क्या करेगा, पोटेशियम आयन को एडसॉर्ब कर लेगा। ओके, तो प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन है कि अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन को मिक्स करते हो, पहले सिल्वर आयोडाइड लेते हो, बाद में उसमें पोटेशियम आयोडाइड के सिल्वर आयोडाइड मिक्स कर लेते हैं, सिल्वर आयोडाइड के पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा आयन क्या हो जाएगा, एडसॉर्ब होने वाला है। ठीक है, तो ये एक चीज है, एक एग्जांपल है जिधर हम क्या कर रहे हैं कि सिल्वर आयोडाइड के कोलोइडल पार्टिकल्स एक जगह पे आयोडीन को एडसॉर्ब कर ले, दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, पोटेशियम को एडसॉर्ब कर रहा है। दूसरा एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, फेरिक क्लोराइड FeCl3, ओके, FeCl3 को हम रिएक्ट कर रहे हैं, FeCl3 को हम हॉट वाटर में जब मिक्स करेंगे, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में जब आप मिक्स करोगे, तो देखो
ये एक ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, ओके, और इसके साथ X नंबर ऑफ वाटर रहेगा, तो हाइड्रेटेड कंपाउंड बन रहा है, एक हाइड्रेट बन रहा है आयरन का, आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेट। और ये क्या करता है, जब भी आप हॉट वाटर में ये प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का जो हाइड्रेट है, हाइड्रेटेड फॉर्म है, वो Fe+3 को एडसॉर्ब करता है, अपने ऊपर Fe+3 को एडसॉर्ब करता है। लेकिन इस सॉल्यूशन में कि इफ NaOH इज एडेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करते हो तो यही आपके पार्टिकल जो कोलाइडल साइज के हैं, ये क्या करते हैं, OH माइनस आयन को एडसॉर्ब कर लेते हैं। तो इधर आपका पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल बन रहा, इधर क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अभी किससे हो गया, NaOH के एडिशन से हो गया। तो NaOH के एडिशन करने के बाद इसका प्रेफरेंस चेंज हो गया, इस कोलाइडल पार्टिकल का प्रेफरेंस चेंज हो गया। पहले वाटर जब था तो वो आयरन को क्या कर रहा था, एडसॉर्ब कर रहा था, प्रेफरेंस दे रहा था आयरन को कि ये Fe+3 एडसॉर्ब हो रहा था सरफेस के ऊपर। जब भी OH माइनस आयन अवेलेबल हो गए सॉल्यूशन में, उसने क्या कर लिया, OH माइनस आयन को एडसॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, आयन को छोड़ दिया, तो प्रेफरेंस दे रहा है, ओके, जो अवेलेबल है उस आयन में से एक आयन को प्रेफरेंस दे रहे, और ऐसे जो मिलेगा, ओके, उससे आपको क्या मिलेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो यही हम बात आगे कैसे डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन को और क्या क्या होता है देखेंगे। समझो कि ये आपका एक सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है। अब इसने आयोडाइड आयन को एडसॉर्ब कर लिया है, I- आयन को क्या कर लिया, एडसॉर्ब कर लिया, एक लेयर ही बना दिया I- आयन। ठीक है, आयन के लेयर इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर बन गई है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं व्हाट इट इज, कोलाइडल पार्टिकल। अभी ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये पूरा का पूरा कोलाइडल पार्टिकल कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। सॉल्यूशन में और क्या है, सॉल्यूशन में डिस्पर्शन मीडियम में के आपने यहाँ क्या किया था, Ki ऐड किया था, जिसमें I माइनस आपका एडसॉर्ब हो गया है, के और K प्लस जो है वो बाकी बचा हुआ है। अभी इस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर I माइनस का नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है कि ये नेगेटिवली चार्ज आयन क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन को एडसॉर्ब सॉरी अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक लेयर बन रहा है पार्टिकल के ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, ओके, एक अपोजिटली चार्ज आयन का एक लेयर बन रहा है। इस लेयर को हेल्होल्ट्ज लेयर बोला जाता है, ओके, इस लेयर को ही क्या बोलते हैं, तो हेल्होल्ट्ज लेयर बोलते हैं, ठीक है, HOLEZ। वापस ये जो हेल्होल्ट्ज लेयर है या फिर अपोजिट चार्ज का जो एक लेयर बना है सरफेस के ऊपर, किसके, कोलाइडल पार्टिकल के, ये इस लेयर को फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, इस लेयर को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, ओके, इस लेयर को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लेयर। अभी पॉजिटिव आयन क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, वापस ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, करेक्ट, और ये नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक सेकेंड लेयर बन गया, दिस इज योर फर्स्ट लेयर which is called as a fixed layer, which is called as a
first layer, sorry, fixed layer, and this is our second layer. This is our second layer, और इस layer को disperse the layer, sorry, diffuse the layer. इस layer को क्या बोलते हैं हम लोग? Diffuse the layer बोलते हैं. So ions which are present in the first layer, ions which are present in the fixed layer, they are attracted by these colloidal particles, or they are bounded to this colloidal particle very strongly, and that's why these ions are not moving. Okay, they are fixed on the surface of this colloidal particle. While the ions which are present in the second layer, the ions which are present in the diffused layer, okay, diffused layer, they are mobile or free. They are mobile or free. Okay. Now what happens? There is a fixed layer of a positive negative ion, and there is a mobile layer of positive negative ion. So these positive and negative ion from the second layer, which are mobile, okay, they may change their places. Okay, and due to change in the process, places, okay, oppositely charged ion come closer to each other. Oppositely charged ion come closer to each other, and what happens whenever the oppositely charged ions or oppositely charged electrode, what we have studied in the electrochemistry, this one is negative, this one is positive. Okay, now whenever this oppositely charged electrodes, they are kept closer to each other, there is a potential difference. What is potential difference between these two electrodes? Potential difference between these two electrodes. Likewise, one first layer, which is fixed layer, another one layer which is also contain charge species, and it has a mobile charges. What it means that there is a charge separation, or there is a oppositely charged layer, or there is a oppositely charged ion which are closer to each other, and that's why there is a potential difference. Potential difference between fixed layer and diffused layer. Fixed layer and diffused layer. There is a potential difference between what fixed layer and diffused layers due to oppositely charged ions are closer to each other, and this difference, potential difference, okay, is called as, or this potential is called as electrokinetic potential. This potential is called as electrokinetic potential, or it is called as zeta potential. It is called as zeta potential. So what is zeta potential? The potential difference between two layers. Potential difference between two layers around the colloidal particle. Okay, or the potential difference between fixed layer and diffused layer, okay, in colloidal solution is called as zeta potential, or it is also called as electrokinetic potential. So this is regarding the zeta potential. This is regarding the charge. Okay, so the remaining part we will discuss in the next lecture. Thank you.